سر کہیے گا، ہم تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور نقوی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کلام الہی سے کافی دوری ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنا ضروری ہے اپنی زندگی میں قرآن پاک کو شامل کرنا، اس کو پڑھنا، لیکن اسپیسیفکلی ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نہیں پڑھتے؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور رمضان المبارک بھی شروع ہے، اور جیسے یہ ماہ سیام ہے تو یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ یقیناً جو قرآن مجید ہے اس کے میرے اور آپ کے اوپر کئی حقوق ہیں۔ مثلاً ایک حق قرآن مجید کا بھی، اور اس سے پہلے جو کتب سماویہ ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، جیسے تو کتب میں قرآن بھی شامل ہے، بلکہ یہ تو امام الکتب ہے۔ اور ایک قرآن مجید کا میرے اور آپ کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور قرآن اور رمضان کا میں تھوڑا سا وقت آپ حضرات کا لوں گا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک حسین ربط بھی یہ ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ رمضان یوں سفارش کرے گا کہ دن بھر اس بندے خدا نے روزہ رکھا تھا، اور قرآن یوں سفارش کرے گا کہ رات کو یہ لوگ تراویح میں مجھے کیا کرتے رہے، سنتے رہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب میں ذرا اپنی بات کو اور مختصر کر لیتا ہوں ناظرین کے لیے۔ مثلا یہ جو قرآن مجید کے 30 پارے رکھے گئے ہیں، اگر ان 30 پاروں کے پس منظر میں ہم چلے جائیں تو وہ یہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 1100 ہجری کے آدمی ہے، شاہ جی بڑے آدمی ہے۔ شاہ جی نے سب سے پہلے قرآن کریم کا بر صغیر میں فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور پھر شاہ جی کے بچوں نے اردو میں موضح القرآن سے کے نام سے ترجمہ کیا ہے، اور بعد کے جتنے بھی یہ تراجم ہیں یہ شاہ جی سے لیے گئے ہیں۔ چاہے مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمان القرآن ہے، چاہے مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن ہے، چاہے کنز الایمان ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، چاہے مفتی شفیع صاحب کا معارف القرآن ہے، جو بھی ہے یہ بعد میں لیے گئے، پہلے یہ لوگ ہیں شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے، جی ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر ہیں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، شاہ جی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہم سے یہ پوچھے کہ آج مہینے کی کیا تاریخ ہے، تو ہم اس پوچھنے والے کو، اس سائل کو یہ نہیں کہتے کہ آج 16 فروری ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں ہم نے ارلی مارننگ صبح و سویرے 16ویں پارے کی تلاوت کی ہے، اب آپ خود سمجھ جائیں کہ مہینے کی تاریخ کون سی ہوگی۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی مطلب یہ خود ہم قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، تو ایک قرآن کریم کا میرے اور آپ کے اوپر حق جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کا ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں حضرات، یہ بخاری کی روایت ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اہل علم بھی، اہل فضل بھی اور اہل دانش بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس دور کے نوجوان۔ میں اس دور کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ حدیث جوانوں کے لیے ہے کہ نوجوان آئے، اور میں ان کے نام لیتا ہوں، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن جابر ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے۔ ان نوجوانوں نے آقا سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں روزانہ ایک قرآن پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امپاسبل، آقا دور اندیش ہیں، صاحب بصیرت ہیں، آقا کے سامنے مستقبل۔ اس لیے اسی حدیث کے آخر میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب زیادہ پڑھنا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے، شکر ہے کہ اگر حضور فرماتے روزانہ ایک قرآن پڑھو میرے لیے مشکل ہوتا۔ یہ اگلے دن آئے، حضور نے فرمایا ایک نہیں، انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں 15 پاروں کی اجازت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 بھی مشکل ہے۔ اگلے دن یہ آئے، انہوں نے قرآن کریم کے 7 حصے کیے جن کو ہم منازل سبعہ کہتے ہیں۔ منازل سبعہ
इसलिए सूरह फातिहा से लेकर सूरह माइदा तक हर वर्क के नीचे एक का हिस्सा लिखा होता है। सूरह माइदा से सूरह यूनुस तक 2 का हिस्सा, यूनुस से बनी इसराइल तक 3 का हिस्सा। ये जो हिस्से लिखे होते हैं, ये मुझे और आपको बताया जा रहा है कि कुरान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा जहाँ हफ्ते के 7 दिन आपके घर में ख़त्म होते थे, वहाँ एक कुरान भी ख़त्म होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आका ने उनसे फरमाया कि तुम कुरान मजीद को 7 दिन में पढ़ा करो। बल्कि मैं इससे भी आगे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरा ये बच्चा है, इसको दाखिल दर्स फरमा दें। इमाम साहिब ने फरमाया मेरा तरीक़ा ये है, मैं उसी शख्स को मदरसे में दाखिल दर्स जगह देता हूँ कि जो कुरान का हाफिज़ हो। ये बच्चा अपने घर गया, इसने सोचा कि रोज़ाना अगर एक सूरत याद करूँगा तो ये तो 114 दिन लगेंगे, एक रुकू याद करूँगा 540, एक पारा याद करूँगा 30 दिन। ये रोज़ाना एक मंजिल याद करता रहा और एक मंजिल याद करता रहा। और एक हफ्ते के बाद इसको वालिद साहब लेकर आए और वालिद ने मोहतरम ने कहा ये इमाम मोहम्मद है रहमहुल्लाह, जो इमाम साहब के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद, और इसने एक हफ्ते के अंदर कुरान मजीद को क्या किया है, हिफ्स किया। ये फ़ज़ाइल हिफ्ज़ुल कुरान में मुफ्ती इमदादुल्लाह अनवर ने आखिर में ये वाक़या लिखा है। और एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ ने इसी इमाम मोहम्मद की किताबों को देखकर, सियर सग़ीर है, सियर कबीर है, मबसूद ज़ियादात है, उन कुतुब को देखकर वो मुसलमान हुआ। तो किसी ने कहा आप इतनी जल्दी क्यों ढेर हो गए? उसने कहा जब इस छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो उस बड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होगा। इसलिए कुरान मजीद को हम महीना वाइज एक एक सिपारा पढ़ें। जहाँ मेरे और आपके घर में महीने के दिन ख़त्म, वहाँ कुरान भी ख़त्म। और अगर आपके पास वक्त है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, मैं बुज़ुर्गों को भी गुजारिश करूँगा कि अब मतलब ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह करीम ने आखिर में फरमाया था इदा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आ गई, वलफत, मक्का भी फतह हो गया, वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आपने लोगों को देखा कि वो लश्कर दर लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रहे। एक वक्त वो था कि 8 सालों तक कुछ लोग थे और अब लश्कर, तो अब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु। तो जो बूढ़े हजरात हैं हमारे, कम अज़ कम अगर वो रोज़ाना 6 से 7 पारे पढ़ेंगे तो जहाँ हफ्ते के 7 दिन ख़त्म होंगे वहाँ उनका एक कुरान भी खत्म। इसी को हम फमी बिशौक से ताबीर करते हैं। आखिरी बात, फ़ा से माइदा तक एक मंजिल, माइदा से यूनुस तक दूसरी मंजिल, यूनुस से बनी इसराइल तक तीसरी मंजिल, बनी इसराइल से शुआरा तक चौथी मंजिल, और शुआरा से फिर काफ वल खुरा 5वीं, और ऐसे 6ठी और 7वीं, और 7 मंजिलें आपने कुरान की जो है इस तरीके से, इन्हीं को मनाजिल सबा कहते हैं। हदीस मुबारक भी है कि तिलावत करने वाले को चाहिए कि वो बावजू हो या हालत अदब में खड़ा हो या बैठा हो, सबसे अफजल नमाज में हालत क़याम में क़िरात करना है। मुफ्ती साहब, हज़रत अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। ये तारिक कुरान होकर भी ख्वारी अल्लामा इकबाल ने उस दौर में कहा और वो आज भी हमें फ़ील होती है। ये सिलसिला है क्या? अब ये कुरान से दूरी का नतीजा है कि जो हम लोग पस्ती में चले गए हैं? आप पुराने दौर में देखें तो तमाम तर जो इल्म था, चाहे इल्म नुजूम हो, चाहे साइंसी लिहाज से इल्म हो, आज जो चीज़ साइंस साबित कर रही है 1400 साल पहले कुरान में आ गया। चाहे हमारे फल्कियात का निज़ाम हो, चाहे बिग बैंग थीरी के हवाले से हो, चाहे इंसान के पैदा होने के लिहाज से हो, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, हर चीज़ का कुरान में जो है वो नुस्खा मौजूद है। फिर भी अगर आज देखें तरक्की याफ्ता ममालिक को, तो उसमें मुसलमान तो नहीं है। बहुत अहम सवाल है मेरे मोहतरम मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ने मारिफुल कुरान में लिखा है। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब के वालिद माजिद हैं और यके अज़बानियान पाकिस्तान है। करारदाद मकासिद पर उनके दस्तखत और सिग्नेचर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि अगर आज आप यूरोप कंट्रीज़ में या किसी मुल्क को भी तरक्की याफ्ता देख लेते हो तो कोई हैरत की बात नहीं है। हक के वो उसूल जो आपने अपनाने थे वो उन्होंने अपना लिए, वो आगे हो गए। सही बात है। यानी एक तो ये बात, और एक ये है कि इकबाल मरहूम जो ये फरमाते हैं कि वो तो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर, यानी मतलब जो तालीमात कुरानिया है उसको हम छोड़ गए जी। मसलन कुरान मजीद हमें सूद से मना करता है जी, और
अल्लाह करीम फरमाते फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ऐलान जंग है। कौन रसूल से और कौन जो है वो अल्लाह से लड़ाई कर सकता है। लेकिन आज अगर आप हमारा बिंकारी निज़ाम देखें, मैं इल्ला माशाल्लाह की बात नहीं कर रहा, और आज अगर मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और इसी तरीके से बाज़ार में तरह तरह के लोग, कमेटियाँ, तरह तरह के लोग, यानी ये इसी तरीके से इस्लाम यानी कुरान मुझे और आपको जुए से मना करता है, नशे से मना करता है। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ये लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं और जुए के बारे में पूछते हैं। आप यकीन जानिए आज का हर नौजवान, मैं इसलिए नौजवानों को ज़्यादा ले रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि अब तो हमारी बच्चियाँ भी सिगरेट पी रही होती है। बड़ा दर्द, एक दर्द है ये। यानी कुरान ने उसके लिए खमर का लफ्ज़ यूज़ किया। खमर अरबी ज़ुबान में दुपट्टे को कहते हैं। जैसे इस बहन ने दुपट्टा सर पर रखा है, इसको बेखुमुरिहिन्ना, तो जैसे औरत सर पर दुपट्टा डाल लेती है उसका सर और बाल छुप जाते हैं, ऐसे जो आदमी शराब या आइस या कोई भी चीज़ नशे आवर चीज़ को यूज़ करता है, खामरल अकल, अकल पर पर्दा आ जाता है। और जब अकल पर पर्दा आ जाता है आप कुछ भी कर सकते हैं। ये शरह तलाक क्यों है? जी जी जी, ये उसकी एक वजह नशा है। लोग इस तरफ आ नहीं रहे। आप यकीन जानिए शुरू में हम तो जो औलाद है इनको वक्त भी देना है, इनको साथ लेकर चलना है। तो कुरान मजीद की जो तालीमात है वो तालीमात जापान वाला उस पर अमल कर रहा है। हाँ, अंग्रेज़ आज 10 दिन उसके मुसलमान के हो गए, वो उस पर अमल कर रहा है। मैं और आप उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। कुरान हकीम में जो शुरू में मैंने भी आयात की कि ये हदायत का सरचश्मा है, और एक ऐसी किताब कि जिसमें नबूवत से लेके तहारत तक के मसाइल मौजूद बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका, चाहे झूठ हो, चाहे वालदैन के साथ रवैया हो, पड़ोसी के साथ रवैया हो, अपने से मातहत जो लोग हैं उनके साथ रवैया हो, अपने बॉस के साथ रवैया कैसा है वो तक रवैया हो। ये जो एहतराम का तकाजा बताता है, अखलाकियात का सबक देता है, इबादत का सबक देता है, इस किताब से हमें रहनुमाई हासिल करनी है तो कोई नुस्खा होगा, कोई तरीक़ाकार होगा, उस तरीक़ेकार पे अमल पैरा कैसे होना है, किस तरीके से? मेरे मोहतरम, आज भी मैं यूनिवर्सिटी में ये गुजारिश आपसे कर दूँ कि अगर रोज़ाना हम कुरान मजीद को, ये जैसे मोहतरम ने फरमाया, ये कोई मसलक की किताब भी नहीं है, किसी ये आफाकी किताब और साइंसी किताब भी और नहीं ये है। साइंसी किताब भी नहीं है। रोज़ाना अगर हम कुरान मजीद को थोड़ा सा वक्त देना शुरू करें और उसमें गोताखोरी करें, गोता जनी करें, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने लगेंगे। एक वक्त आएगा कि बहुत सारी सूरतें, इसके जो मरकज़ी मज़ामीन हैं, मक्की सूरतों के जो मरकज़ी मज़ामीन हैं, मदनी सूरतों के जो मरकज़ी मज़ामीन हैं, आप उसको समझने लगेंगे। मसलन मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ, एक आदमी है, वो नौजवान है और वो ये चाहता है कि मैं एक नौजवान हूँ तो कुरान करीम मेरी रहनुमाई कैसे कर सकता है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ, जो नौजवान है वो सूरह यूसुफ को पढ़े। यूसुफ वक्त के नौजवान है, कैसे वो अपने दामन को बचा रहे हैं। उस कुरान करीम उस बंद कमरे का जिक्र कर रहा है। कुरान करीम उस बंद कमरे का जिक्र कर रहा है और कुरान करीम जो है वो हज़रत यूसुफ के किरदार का जिक्र कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जवान हैं। जब आका को नबूवत मिलती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस में 11वें पारे में एक बड़ी अजीब बात कही है। अल्लाह अकबर। माजरत कलामी के लिए यहाँ से गुफ्तगू का आगे जो है वक्फे के बाद जो है आगाज़ करेंगे, क्योंकि जवाब जो है वो हम सुकून से सुनना चाहते हैं। तो फुरकान रमज़ान का सिलसिला जारी हो सारी है। फिर से आपको फुरकान रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। जी मुफ्ती कुरैशी साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कुरान की। जो नौजवान है वो कुरान करीम से ये सबक ले सकते हैं, दर्स ले सकते हैं कि हज़रत यूसुफ के किरदार को कुरान बयान करता है, हम वो किरदार क्यों नहीं अपनाएं। अस्हाब काफ नौजवान थे, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो अपने दौर के नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लेकर आए थे, तागूती ताकतों को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब ये है कि वो नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिलती है 40 साल के बाद मिलती है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आका 40 साला दौर को 2 जुमलों में बयान कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का से कहते हैं
आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से सफ़र तय करके मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन चुका हूँ, यकदम तुम मेरे मुखालिफ हो गए हो। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, मैंने 40 साल तुम्हारे दरमियान में गुजारे, उस पर उंगली तो उठाओ ना। मैं किसी के सामने अपना एक वीक, एक हफ्ता नहीं रख सकता, मैं किसी के सामने एक महीना अपना नहीं रख सकता। आका फरमाते मैंने 40 साल तुम्हारे दरमियान में गुजारे हैं। इसलिए अम्मा जान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निकाह कर लेती है और 15 साल वो आका के साथ रहती है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही की आयत नाजिल होती है तो अम्मा जान क्या फरमाती है, ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदन, आप ऐसे खूबसूरत कदआवर नौजवान हैं, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो मेहमान नवाज हैं, आप में ये तमाम खुसूसियात कुरान। इसलिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से किसी ने पूछा, मैं बात आखिरी इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ कि आका के अखलाक के बारे में, उन्होंने फरमाया आका के अखलाक क्या है, वो कुरान ही है। और तिलावत कुरान मजीद पर बात हो रही थी। हाँ, और ये भी अर्ज़ कर दूं कि जो ख़वातीन है वो हमें सुन रही है, आका फरमाते अल्लिमू निसाअकुम सूरतुन नूर, तुम औरतों को सूरह नूर सिखाओ, घर में दाखिल होने के अदाब, निकलने के अदाब, ये वो सब कुछ। इसी तरीके से नौजवानों के लिए अर्ज़ कर रहा था मैं, आका फरमाते हैं तुम नौजवानों को सूरह माइदा सिखाओ। मोहतरम बैठे हैं, गुस्ल के फ़राइज़ सूरह माइदा में, वज़ू के फ़राइज़ सूरह माइदा में, शिकार का तरीक़ा सूरह माइदा में। नौजवान शिकार ही करेगा ना। अच्छा, चोरी और चोरी के वो इकबाल जुर्म और वो सब कुछ, हज़रत आदम के दोनों बेटों का तज़किरा सूरह माइदा में। इसलिए फरमाया नौजवानों को सूरह। आज यूरोप वाले हमें ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को कुछ हक नहीं दिया, हम उन्हें ये कहते हैं इस्लाम ने तो औरतों के नाम पर सूरत नाजिल फरमाई है, सूरह निसा। आप कैसे कहते हैं कि इस्लाम उस सूरत नाजिल फरमाई, उसमें मीरास का जिक्र आया, उसमें मियाँ बीवी का तज़किरा आया, नोक जोंक का तज़किरा आया, तमाम चीज़ें उसमें बयान की गई। और मैं तिलावत कुरान मजीद पर दो बातें, एक ये है कि आका उसका जो दुनियावी फ़ायदा है कभी इस पर बात करेंगे। आका फरमाते हैं कि अल्लिमू निसाअकुम, तुम औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, फ़इन्नहा सूरतुल ग़िना, ये घर में मालदारी लाने वाली सूरत है। यानी खातून, मेरी माँ बहन रात को सूरह वाक़िया पढ़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का इरशाद है कि जिस घर में आका फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद इतने जलील क़दर सहाबी हैं, हज़रत उमर की चीफ जस्टिस है, काज़ी उल क़ुज़ात है। एक दिन ऐसे मिसवाक तोड़ने के लिए ना यूं दरख्त पर चढ़ रहे थे, तो सहाबा उनकी टांगों को देख के ना वो दुबली पतली जरा हंस पड़े। तो आका ने फरमाया ये ओहद पहाड़ से ज़्यादा वजनी है। ये कैसे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आका से रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत होती है वो घराना कभी भूख का शिकार नहीं। इसलिए आप आखिर में बीमार होते हैं, एक तवील वाक़या, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बीमार पुरसी के लिए आते हैं, आपको रकम वग़ैरह की पेशकश करते हैं, आप फरमाते नहीं, मैंने अपनी बच्चियों को ये कह रखा है कि तुम रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करो, कभी तुम्हारे ऊपर फाका नहीं। आखिरी बात, ग़ज़वा उहुद है, एक सहाबी फरमाते हैं इज्तिमाई कब्रें हमने खुदवाई। ग़ज़वा उहुद में 70 कब्रें, 70 सहाबा उसमें शहीद हुए थे। तो जब कब्रें हमने खुदवाई, ये सहाबी फरमाते हैं, ये इमाम अबू दाऊद ने किताबुल जनाइज़ में, इमाम तिरमिज़ी ने ये हदीस नकल की है, वो फरमाते हैं कि कब्र तो तैयार हो गई, मेरे वालिद भी शुहदा में शामिल है, तो मैं आका के पास, आका की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तिलावत कुरान मजीद का नजम साहब उखरवी फ़ायदा नकल कर रहा हूँ सामीन के लिए, उखरवी फ़ायदा, एक तो मोहतरम ने, एक मैं, तो उन लाशों को हम लेकर आए, मैयतों को लेकर आए, तो मैंने आका से ये पूछा कि पहले नौजवान को कब्र में उतार दूं या बूढ़े को उतार दूं, या पहले औस वाले कबीले वाले को या खजरजी कास्ट कबीले वाले को। आका ने फरमाया ये सारे पैमाने नौजवान यहाँ बदल जाते हैं, यहाँ उस शख्स को पहले रख लो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत किया करता था, ताकि वो पिछलों के लिए ढाल बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। के दो मानी हैं, या तो उसको इकरा में ले ले
हाँ, वो जो 5 आयत हैं कि पढ़िए, या कुरान कर्न से कर्न ज़माने को बोलते हैं, ये हर ज़माने में आप ही का मुक्तदा। बहुत खूब जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना था कि अगर हम सहरी करके सो जाते हैं और अगले दिन इफ्तारी तक सोते रहते हैं या इफ्तारी से पहले जागते हैं, तो इस तरह रोज़ा रख सकते हैं? रोज़ा कबूल है? जी ठीक मुफ्ती हो साहब, गया। ये सवाल इश्तियाक साहब कराची से। अच्छा मोहतरम, यकीनन रोज़ा तो अपनी जगह पर है और आपने रखा है, वो तो कबूल है वो मेरे ख्याल है उन्होंने इस बात को सीरियस ले लिया है जी। कि सोना इबादत है। जी। लेकिन ये है कि दिन भर सोना इबादत नहीं है। वजअलना नहार माशा, अल्लाह करीम ने दिन को ज़रिए माश बनाया है। फिर उसमें जो ज़ोहर का वक्त आए आप ज़ोहर पढ़ लीजिए, उसमें जो असर का वक्त आए वो बंदा असर पढ़ ले, मगरिब का वक्त आए मगरिब भी, नमाजें भी साथ साथ हो और आराम भी हो। लेकिन सिर्फ ये है कि ये गर्मियों में कुछ नौजवानों का जो एक मामूल बना था कि वो फिर घर वालों को कहते थे मुझे जगाना नहीं है और असर के करीब करीब मुझे फिर जगा लीजिएगा, और वो उस वक़्त जब आप दस्तरखान सजा रही हो, तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये जो शख्स है जो दिन भर सोया रहा तो गोया कि वो आमाल रमज़ान से महरूम हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रमीना बात कर रही हूँ गिलगित से। मेरा सवाल था कि पहाड़ी इलाकों में अज़ान की जो आवाज़ है वो हर जगह पर नहीं पहुँचती, तो रोज़ा खोलने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए? जी बहुत खूब, ठीक है। बहुत खूब जी। जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया और इसमें सहरी को भी शामिल कर लीजिएगा डेफिनेटली। कि सहरी भी और अफ्तारी भी, इन दोनों का जो ताल्लुक है वो अजान के साथ नहीं है, वो वक्त के साथ है। जैसे सहरी में तंदूर वाले ले लें, मैं कोई उनका मैंने एक नाम लिया, वो मुझे माफ़ फरमाए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। वो लोगों को रोटियां दे रहे होते हैं, आखिर में जब अजान शुरू हो जाती है तो फिर वो लस्सी का घोंट पीना शुरू कर लेते हैं। नहीं, मतलब ये है, हो सकता है मे भी मुअज्जिन जो है वो बिफोर टाइम वक्त से पहले अजान दे दे, और हो सकता है मुअज्जिन जो है वो अभी वक्त पूरा हो चुका 5 मिनट के बाद वो वुजू कर रहा था, फिर आकर वो क्या दे दे, अजान। तो अब बात मुख्तसर कर लेते हैं। जैसे रोज़ा फ़र्ज है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, या जैसे नमाज फ़र्ज है, ऐसे ही औकात नमाज का जानना भी फ़र्ज है, औकात सियाम का जानना भी फ़र्ज है। मुझे और आपको कम अज़ कम ये एहसास होना चाहिए कि आज जो सहरी का आखिरी वक्त है वो क्या है, और आज इफ्तारी का जो आखिरी वक्त है वो क्या है। बस वक्त का आपको इल्म है, बेशक आपकी मस्जिद में अजान हुई है या कि नहीं, लेकिन वक्त का इख्तिताम हुआ, आप इफ्तारी करें। सहरी में वक्त का इख्तिताम हुआ, आप खाना पीना क्या कर ले, बंद कर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मैं इशल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मुझे आपसे ये सवाल करना था कि जो औरतें, ख़वातीन जो हैं वो घर के काम करने के साथ साथ जो है वो ऑफिस में भी, दफ्तरों में भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही होती हैं, तो वो किस तरह से अपनी इबादत और घरेलू ज़िम्मेदारियों के दरमियान में जो है वो एक तवाज़ुन रख सकें, मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये तो एक मुश्किल काम है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, बड़े आदमी हैं, हिंदुस्तान के काबे का दरवाज़ा उनके लिए खुला, तो एक खातून ने उनसे सवाल किया, तो मौलाना ने फरमाया यहाँ आप कितने लोगों को इस जम्बू जहाज़ में खुश कर रही है, और लेकिन अगर आप पर तो घर, इस्लाम ने जो बोझ डाला था वो घर का, और अगर आप घर में होती तो घर के अफराद कम थे, जहाँ शादी ब्याह में वहाँ भी। लेकिन जो ख़वातीन बाहिम्मत हों और वो घर से बाहर भी काम करना चाहती हो, इस्लाम उससे भी मना नहीं करता। यानी मसलन जिस तरीके से हेल्थ के शोबे में हमें ख़वातीन की ज़रूरत है, तालीम के शोबे में हमें ख़वातीन की ज़रूरत है, सिक्योरिटी के शोबे में भी हमें ख़वातीन की ज़रूरत। अब एक औरत है, वो एयरपोर्ट में जा रही है, अब उसकी तलाशी एक औरत ही ले सकती है, कोई और आदमी तो मर्द तो नहीं ले सकता। मतलब ये है कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी पे एक खातून को आप तैनात करेंगे, मतलब ये है कि खातून जॉब कर सकती है। अब जब वो जॉब भी करती है, रमज़ान भी है, उसने वापस घर जाकर खाना भी बनाना है, तो एक इसमें वो जो मोहतरम
حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی کہ جو خواتین دفاتر میں کام کر رہی ہے میں ان کے جو آنر ہیں اور مالکان ہیں میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے ذرا سا ان کے لیے وقت میں کمی لائیں. بالکل بالکل درست کہا. اور رمضان میں میرا خیال ہے ویسے بھی یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اوقات جو ہے آفس کی اور رکھتے بھی جی رکھتے, لیکن خواتین کے ساتھ ضرور بالکل یہ اور ان کے ساتھ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں وہ خطبہ شبانیہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ماہ رمضان میں جو یعنی کہ اپنا اونر ہے وہ ماتحت کا کام اگر کم کرے گا تو آخرت میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کام بھی ہیں, سحری بھی کرنی ہے, بنانی ہے, افطار بھی بنانا ہے, پورا گھر کا کام بھی ہے, آفس میں بھی ہے, یہ ڈبل ان کا اجر بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آسانی اس لیے ہو سکتی ہے پیدا کہ گھر والے افراد چاہے وہ اس کا شوہر ہے تو وہ ہاتھ بٹائے اس کا, وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے. اور یہاں پہ عورتوں کے لیے ایک حدیث ہے بڑی کمال کی کہ اگر کوئی عورت گھر کا کام کرتی ہے اور پھر روزے میں کرے تو کیا ہی بات ہے, اور اس کام کی وجہ سے اس کے بدن سے جو پسینہ گرتا ہے تو اس کے پسینے کا قطرہ شہید کے خون سے بھی افضل قرار بالکل دیا آپ نے جاتا ہے. فرمایا تھا. بہت شکریہ. آخری سوال ہے ہمارے پاس جی, اس کو سنتے ہیں. نوجوان نسل جو اینزائٹی اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, کیا رمضان ان شخصیت میں حقیقی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ ضرور. رمضان یقیناً ایک سکون کا نام ہے. کم کھانا خود بھی ایک سکون ہے, اور پھر رمضان المبارک میں نوجوان اگر نماز کی طرف راغب آئے ہوگا اور نوجوان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسجد کی طرف آئے گا تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اسی سے دلوں کو اطمینان. اور ایک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یہ جو جن چیزوں کی وجہ سے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ انزائٹی کے شکار ہو چکے ہیں وہ در حقیقت وہ اسلام سے دوری ہے. اور جب یہ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے, میں آپ کو ایک عرض میں ابھی شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا تھا, پتہ نہیں اس وقت آپ ہمیں سن رہے تھے یا نہیں. شاہ جی کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ, بڑے آدمی ہیں شاہ عبدالعزیز. شاہ عبدالعزیز صاحب سے ایک آدمی نے کہا کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. ہم علامہ صاحب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جمعے میں ہمارے آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں, ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ نہ جائے. اچھا وہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں یا مائیں بہنیں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے ان کو نیند آ جاتی ہے. اس شخص نے یہ کہا, سوال دیکھیے, اس نے کہا جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں مجھے نیند آتی ہے, اور جب میں کسی اور محفل میں بیٹھتا ہوں گانا بجانا تو اس میں مجھے نیند نہیں آتی, بے شک مجھے صبح تک ارلی مارننگ تک بٹھایا جائے. شاہ جی نے بڑا پیارا جواب دیا, بڑے بڑے ہوتے. شاہ جی نے فرمایا جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو نیند آتی ہے یہ حقیقت میں وہ پلنگ ہے جس پر پھول بچھے ہوئے ہیں, جس پر خوشبو ہے, نرم بستر ہے. اور جب آپ اس محفل میں ہو اور آپ کو جو نیند نہیں آتی وہ کانٹے دار پلنگ ہے, وہ کانٹے دار سریر چارپائی ہے, وہاں آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اسلامک اسکالر تھے, انگلش اسلامک اسکالر, انٹرنیشنلی وہ کہیں پر لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے اور ایک کرسچن نے ان سے سوال کیا اینڈ ہی گوز لائک کہ آپ مجھے ودن 2 منٹ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے, تو جو اسکالر تھے انہوں نے بولا کہ میں آپ کو 2 منٹ نہیں, میں آپ کا صرف 1 منٹ لوں گا, ٹھیک ہے, اور 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 1 منٹ یہ بہت اہم بات ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں, ان کو امام الاولیاء کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سکھ خاندان سے مسلمان ہوئے. اچھا, آپ ضرور واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیجئے گا. ان کا جو مجھے سننے میں آیا کیونکہ میں نے خود وہ لائیو لیکچر میں سن رہا تھا, وہ انگلش اسکالر ہی تھے جن سے سوالات ہو رہے تھے, تو انہوں نے بولا کہ قرآن کے جو ہے نا وہ 4 موضوعات. ٹھیک ہے, پہلا موضوع کہ خدا کون ہے, کس کو کی عبادت جو ہے وہ کرنی ہے, کس کو معبود جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے, کس کو نہیں بنانا. ٹھیک ہے. دوسرا موضوع کہ زندگی جو ہمیں عطا کی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسرا موضوع وہ کہ جو رولز ہیں ڈونٹس اینڈ ڈوز, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, جو ویلیوز آپ کو بتائی گئی ہیں. اور آخری کہ جو اخروی زندگی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ جو سلسلہ بتایا گیا ہے. تو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ 4 موضوعات اور انہی کے اوپر ہے. اب آپ فرمائیے گا. جی. امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بڑے آدمی ہیں, مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد رشید ہیں. قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے لکھی,
मौलाना ने तफसीर लिखी। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह से जो सिख ख़ानदान से मुसलमान हुए, उनसे किसी ने पूछा कि कुरान करीम का खुलासा लुब्बे लुबाब निचोड़ क्या है। उन्होंने फरमाया, चूँकि वो कुरान करीम के ख़ुद बड़े उस्ताद भी थे, मुअल्लिम भी थे, मुर्शिद थे, उन्होंने फरमाया कि अगर एक आदमी रेल में सफ़र कर रहा हो और वो जो सिटी बजाने वाला है वो आवाज़ दे दे, सिटी भी बजा दे कि गाड़ी चल रही है, और एक आदमी जो है वो पाँव नीचे रखे और एक ऊपर रख ले जो रेल के उस पे, वो फ्रंट दरवाजे के उस पे, तो और मुझसे वो पूछे कि मौलाना इतने कम वक्त में मुझे कुरान का खुलासा बताओ। वाह वाह वाह, अच्छा, बड़ा एक वो वक्त होगा ना, तो मैं उसमें भी उसको, उन्होंने कहा कि कुरान का खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कीजिए इबादत के ज़रिए। वाह वाह, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कीजिए इताअत के ज़रिए, और मखलूक़ खुदा को राज़ी कीजिए खिदमत के ज़रिए। यही है इबादत, यही है दीन व ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान, यानी अल्लाह को राज़ी करना इबादत के ज़रिए। बेशक रोज़ा भी इबादत है, रोज़ा भी उसमें इबादत, रसूल को राज़ी करना इताअत के, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और खल्क़ खुदा को आप राज़ी करें किसके ज़रिए, खिदमत के ज़रिए। रमज़ान में आप लोगों की खिदमत करें, रमज़ान में लोगों, जैसे हमने कहा कि घर वालों की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, आपको एक शख्स कुरान सुनाता है उसकी आप खिदमत करें, आपको एक शख्स घर में खाना बनाता है। मैं ये हदीस कोट करूँगा, सामईन इसको सुन ले, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमारे घर में बड़े कुकमेल लोग होते हैं, वो बड़े लोगों के घरों की बात कर रहा हूँ, और उनके घरों में वो लोग तकरीबन ज़ोहर के बाद किचन में घुस जाते हैं और वो उन्हीं की फरमाइशों पे ये खाना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अल्लाह अकबर, आका कैसे शफीक है। आका फरमाते हैं ये शख्स जब तुम्हारे पास खाना लेकर आए, पहला हक तो ये है कि इसको अपने साथ बिठा दो, और अगर ये भी नहीं बिठा सकते, करनी मुमकिन ना हो, शायद वो और खाना बना रहा हो, तो कोई 2 लुक़मे उठाओ उसके मुंह में डाल दो, और ये जो 2 लुक़मे आप उसके मुंह में डालेंगे उसकी थकावट क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जो उसने धुआं वहाँ आका फरमाते हैं बर्दाश्त किया है, उस ज़माने में धुआं, अब भी जो सर्द गर्म माहौल उसने बर्दाश्त किया है वो उसको भूल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या रब्बी करीम इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमा, हमारे जुमला गुनाहों को मुआफ़ फरमा, इस माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को हमारे लिए मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बना, और सही मानों में हमें इस माह रमज़ानुल मुबारक की साअतों की कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज कुरान करीम पर गुफ्तगू हुई तो या रब्बी करीम ये आपकी किताब है, इसे समझने, इसे पढ़ने और इस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब आपका, बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद अमजद शाह नकवी साहब आपका।